Assalamu alaikum. Girls, in this video I will explain you the chapter B. Wordsworth. It is written by V.S. Naipaul. First I will tell you little about V.S. Naipaul. He was born on 17th of August 1932 in British and died on August 11, 2018 at the age of 85 in London, that is England. By occupation, he was novelist, a travel writer, that is, he visited different places and write about it. He was a British citizen. Thus, this is a chapter about Naipaul's when he was a little boy and he was living in the street of Miguel. And he had some consultation with a poet called B. Wordsworth, and the consultation and the talks and the discussions were fascinating, and that's the reason V.S. Naipaul thought to share his memories. ये चैप्टर जो है वो नाइपॉल के अपने बचपन का है, जब वो मिगवल में रहते थे और मिगवल की गलियों में रहते थे और उनकी बी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात हुई थी। उनकी मेमोरीज़ उनको इतनी फैसिनेट हुई और इनकी डिस्कशंस वगैरह उनको इतनी याद थी कि वो उनकी मेमोरीज़ को अपने हम सबके साथ शेयर करना चाहते थे। In Miguel's streets, there were used to be some beggars that used to visit some hospitable houses, which means those houses in which they thought they would get something useful, and V.S. Naipaul's house was from one of them. So at about 10 a.m., 12 noon and 2 p.m., three beggars knocked the door and they got something or the other. Sometimes there used to be beggars who were very mischievous and stubborn. Once the person knocked at the door at 4 p.m. He was a stranger. He asked permission to get into the house. The boy observed that the man was looking very nice and was not looking like beggar. बस इस पेज पे जो है वो आपको ये समझाया गया है कि V.S. नाइपॉल जो है वो मिगवल स्ट्रीट पे रहते थे अपनी मदर के साथ, और वहाँ पे बेगर्स आते थे, भिखारी आते थे, और वो अलग अलग घरों में जाकर, जो कि वेल ऑफ घर होते थे, जिनको समझ में आता था कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाते थे और उनको जो भी चीज़ मिलता था वो उसको अवेल करते थे। मिगवल के हाउस पे भी तीन भिखारी ज़रूर मिगवल नहीं, नाइपॉल के घर पे भी तीन भिखारी आते थे, और वो एक 10 बजे आता था, एक 12 बजे आती थी और एक 2 बजे, और उनको जो मिलता था, जो भी चीज़ उनको वो देते थे वो लेके जाते थे। कभी कभी कुछ ऐसे भिखारी भी आ जाते थे जो बड़े अजीब व गरीब होते थे और बहुत ज़िद्दी किस्म के भी होते थे। एक दफ़ा जो है वो 4 बजे जब नाइपॉल जो है अपने घर स्कूल से वापस आए, अपना चेंज वेंज किया और ड्रेस चेंज करने के बाद वो नॉक पॉइंट के डोर पे, तो उन्होंने देखा एक अजनबी शख्स वहाँ पे खड़ा है और उनसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। उस लड़के ने ऑब्ज़र्व किया कि वो आदमी जो है वो भिखारी नहीं लग रहा था उसके लुक से। On the next page, the man said that I want to observe the bees having in your garden. The boy had 4 palm trees in his garden and were full of bees. So the boy rushed to his mother and asked for the permission. The boy's mother comes down and inquires about what that person wanted. The person again said, I just want to observe your bees. But the way he replied made the boy's mother think, because his response had beautiful English. His English was above average. The boy's mother decided that this man looks decent and let him allow what he wanted. But at the same time, the boy's mother told the boy to keep an eye on him. The man thanked the mother about the good deed she did today. The man and the boy sat below the palm tree and started watching bees, their movements, their hard work, their hives. And he said, I like watching bees, and asked the boy if he liked watching bees too. The boy denied, and the boy replied, I don't have time, and I feel it's wasting of time. Hearing this answer, the man became so sad and said that he just did this thing. He observed the things around him. He just observed birds, animals, and insects, and he could watch ants for many, many days. Then he inquired if the little boy watched ants
or other creatures? And the boy denied. The boy asked about the occupation of the man. The man said that he was a poet. The boy tried to ensure that if he was a good poet, the man said with the confidence that he was the greatest poet in the world. The boy asked his name, and the man answered B. Wordsworth, and also stated that B stands for black, not Bill, and said that White Wordsworth was his brother, and they had the same views and same thoughts, their opinions were the same. The poet said that I watched the small flowers and I liked the glory and cry. The boy was amazed to hear that why the poet cry. The poet said that he could cry for everything. He said that if you are a poet, you can cry for everything. He also said the little boy that when he grows up, he will know why a person cries. Then the man asked if he liked his mother. The boy said, "Yes, I like her, but when she when she is not beating me." Then the man took out a paper on which something is written and tries to sell it. It had the poem written about the mother in a piece of paper, which he tried to sell to the boy. The boy asked her mother if she wanted to buy. The mother was furious and said that tell that man to get out of my house. But the boy didn't tell the truth. The boy told that his mother did not have enough money to buy the poem. The poet said, "This is the saddest thing the poet could hear." उस आदमी ने बेटा परमिशन लिया कि मैं आपके गार्डन में बैठ के बीज को जो है वो देखना चाहता हूँ। उसके लड़के के बाग में जो है वहाँ पे 4 दरख्त थे जिसके ऊपर जो है वो शहद की मक्खियों के छत्ते बने हुए थे। तो उसकी मदर ने जो है वो लड़का जो है वो अपनी माँ के पास गया और परमिशन ली कि वो आदमी जो है वो हमारे गार्डन में बैठकर बीज को देखना चाहता है। उसकी माँ नीचे उतरी कि इस अजनबी को किस तरह हम घर के अंदर रख सकते हैं। फिर जब वो नीचे उतरी और उस आदमी से बात की कि आपको क्या चाहिए, तो उस आदमी ने दोबारा से कहा कि मैं जो है वो आपके घर के बाहर जो बीज है उसको देखना चाहता हूँ आपके गार्डन में। फिर जो है वो उसके मदर ने जो है जब उससे बात की तो उसे बड़ा जेंटलमैन लगा क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। उसकी मदर से इंस्पायर्ड हुई और उसने कहा कि ये डिसेंट लगता है और फिर उसने जो है उसको परमिशन दी और साथ ही बेटे को हिदायत की कि इस पर नज़र रखना जब तक कि वो आपके साथ मौजूद है। इसके बाद जो है वो लड़का और आदमी जो है वो बैठकर पाम ट्रीज़ को उनके ट्रीज़ को देखने लगे और वहाँ पर जो है वो वहाँ पे हाइव्स बीज के मूवमेंट्स और उनके हार्ड वर्किंग को और उनके छत्तों को गौर से देखने लगे। और उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि क्या आप इसको देखते हो? उसने बोला नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब देखूँ, मुझे तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम लगता है। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने कहा कि मैं तो अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को देखता हूँ, चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, यहाँ तक कि मैं चींटियों को, आंट्स को तो है वो कई दिन तक मैंने देखा है। उसने कहा कि क्या तुम इस तरह चींटियों या किसी और मखलूक़ात को इस तरह से देखते हो? लड़के ने मना कर दिया। लड़के ने उससे उसका ऑक्यूपेशन पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो उसने बोला मैं पोएट हूँ। फिर इसके बाद जो है उसने कहा कि क्या आप अच्छे पोएट हो? उसने बोला कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं तो दुनिया का बेहतरीन पोएट हूँ। फिर उस लड़के ने उससे नाम पूछा। उसने बोला मेरा नाम बी वर्ड्सवर्थ है। लड़के ने बोला बी का मतलब बिल? तो उस आदमी ने बोला नहीं, बी का मतलब बिल नहीं है बल्कि ब्लैक वर्ड्सवर्थ। उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो वाइट वर्ड्सवर्थ है और उसकी और मेरी सोच बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। फिर जो है उसने कहा कि मैं जो है वो मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर्स वगैरह को, छोटे छोटे फूल वगैरह को देखकर भी रोता हूँ। उस लड़के को हैरत हुई बच्चे को कि आप क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि जब पोएट होते हैं वो हर चीज़ को देखकर रोते हैं। उसने कहा कि अगर आप पोएट होते तो आप भी हर चीज़ को देखकर रोएंगे और मुझे यकीन है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी जो है वो समझ जाएंगे कि लोग क्यों रोते हैं। फिर उसने कहा उस आदमी ने पूछा उस बच्चे से कि क्या आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो? उसने बोला हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब वो मुझे मारती नहीं है तब। फिर उस आदमी ने एक पेपर निकाला और उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने कहा कि ये पोम है माँ के बारे में, जाओ ये पेपर आप ख़रीद लो। वो लड़का वो पेपर लेकर अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ गुस्से हो गई, उसको बोला कि उस आदमी को अपने घर से निकालो। जब वो लड़का उस आदमी के पास गया तो उसने वो सच नहीं बताया बल्कि कहा कि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये ख़रीद सके। उस लड़के पोएट ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम
शायरों के साथ कि कोई भी ख़रीदता नहीं है। ये बहुत ही बैड चीज़ है, सैडेस्ट चीज़ है। Then he put the paper bag inside his pocket. The boy was said it's funny way to sell poetry going house to house. The boy said that only Calypsonians do that. The boy also asked that if anyone bought it. The poet replied, not a single copy been sold yet. Then the boy said, why did you do this? The poet replied, that is as I like to observe everything, visiting each and every house, and I also wish to meet poets. The boy asked if the man really thought that the boy was a poet himself. The man replied the boy was. And then B. Wordsworth left. The boy had some sort of bond with that man and wished to see him again. Now, after a week later, when the boy was coming back from school, he noticed the man standing at the corner of the Miguel Street, and then the man told little boy that he had been waiting for him. There is a reason to that, but before he tells the reason, the boy asked, did you say any poetry? Did you sell anything? He denied. Then B. Wordsworth told the reason why he was waiting for him. He said that he have a house where right now lots of sweet, juicy and ripe mangoes are there. So why don't you come and eat some of my mangoes? The boy went and observed that he lived in one-roomed hut and had lots of plants in his garden. He saw coconut tree, plum tree and mango tree. The wild plants around B. Wordsworth's house felt like that his house is not a part of a city. The boy found the poet was right. The mangoes were really very tasty and he enjoyed it, but unfortunately the boy's shirt stained eating mangoes. When he returned back to his house, his mother gets angry. As the little boy did not inform his mother before going to the poet's house, his mother scolded him and beat him with a whip. Whip means a long stick. That the boy and he hits a lot. Sorry, and his mother hits him a lot. That the boy not only started crying but also left the house and went to the poet's house. B. Wordsworth said to go out for a walk. After a long walk, poet asked the boy to lay down on the green grass and watch the sky, and the boy exactly did what the poet said. अच्छा, पोएट जो है वो अपने पेपर जो उसने वो दिया होता है वो वापस अपने पॉकेट में रखता है और लड़का उससे पूछता है कि ये अजीब नहीं लगता, एक फ़नी लगता है कि आप जो है वो घर घर जाके बेचो। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कैलिप्सोनियंस जो है वो ये काम करते हैं। कैलिप्सोनियंस वो लोग होते हैं जो जगह जगह जाकर गाना गाते हैं और पैसे लेते हैं। तो उसने कहा कि कैलिप्सोनियंस ऐसे करते हैं कि वो गाना गाते हैं और लेते हैं, तो आप पोम्स क्यों घर घर जाके बेचते? तो उसने कहा कि और पूछा कि क्या आपकी कोई कॉपी बिकी? उसने बोला नहीं, अभी तक कोई भी कॉपी ऐसी है मेरी नहीं बिकी। तो उसने बोला फिर आप ऐसे क्यों जाते हैं? तो उसने कहा, पोएट ने कहा कि बी. वर्ड्सवर्थ ने, कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग लोगों से जाके मिलूँ, मुलाकात करूँ और शायरों से मुलाकात करूँ। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप भी एक शायर हो। तो लड़के ने पूछा कि क्या वाकई में मैं भी शायर हूँ? तो उसने कहा कि हाँ, तुम एक बेहतरीन शायर हो। फिर वो चला गया, बी. वर्ड्सवर्थ वहाँ से चले गए। इसके बाद जो है वो लड़के को उसके साथ, उस आदमी के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी और वो चाहता था कि उससे दोबारा मुलाकात हो। काफ़ी वीक्स गुजर गए। इसके बाद जो है वो एक दिन उस लड़के ने नोटिस किया कि वो आदमी जो है वो मिगुल स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ा है। उस आदमी ने कहा कि मैं आप ही का वेट कर रहा था, और उससे पहले कि वो रीज़न बताता कि क्यों, लड़के ने पूछा क्या आपकी कोई पोइट्री नहीं लिखी, क्या आपने कोई बेची? उसने बी. वर्ड्सवर्थ ने कहा नहीं। फिर जो है उसने अपनी रुकने की रीज़न बताई कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि मेरे पास एक गार्डन है, वहाँ पर इस वक्त जो है वो बहुत ही जूसी फ्रूट और पके हुए जो है ना स्वीट मैंगोज़ हैं। आप क्यों नहीं आते हो मेरे घर पे और इन्जॉय करते हो उस मैंगोज़ को? लड़के ने जो है वो इन्विटेशन इसका एक्सेप्ट किया और वहाँ चले गए। उसने नोटिस किया कि उनका जो है वो घर एक रूम पर है, उनकी झोंपड़ी, और वहाँ पे बाहर बहुत सारे प्लांट्स हैं और उसके गार्डन में जो है वो बहुत सारे पौधे और दरख्त हैं, जिसमें कोकोनट
प्लम ट्री और मैंगो ट्रीज़ वगैरह शामिल हैं। और बहुत सारे बी वर्ड्सवर्थ ने जो है वो ऐसा लग रहा था उसका घर जैसे वो शहर से कटा हुआ है, शहर के अंदर इसका घर है ही नहीं, क्योंकि इर्द गिर्द इतने प्लांट्स और पौधे और दरख्त थे। लड़के ने जो है वो कहा, जब मैंगोज़ खाए तो उसे वाकई बहुत टेस्टी लगे, और जो है उसे उसकी जो शर्ट पे जो है वो धब्बा भी लग गया। तो जब वो घर वापस गया तो चूँकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया था अपनी मम्मी को जाने से पहले, और तो इसकी माँ ने जो है उस पर बहुत गुस्सा किया और उसको जो है वो लकड़ी से मारा भी, और इतना मारा कि वो रोता हुआ चला गया। और उसने सोच रखा था कि अब मैं वापस घर नहीं आऊँगा, और सीधा वो पोएट के घर पे चला गया। बी वर्ड्सवर्थ ने जब इसको देखा तो वो उसको लॉन्ग वॉक पे लेके गया, और लॉन्ग वॉक पे जाते जाते जब एक जगह वो रुके और उन्होंने जो है वो ग्रीन ग्रास पे लेट गए, और उन्होंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, और लड़के ने भी, बच्चे ने भी वही काम शुरू कर दिया जो बी वर्ड्सवर्थ ने कर रहे थे। In the next page, the boy initially felt nothing, but gradually he felt great, and the boy forgot about his tears and anger. The boy told that now he is feeling better. Then the poet explained him all about the stars, but the boy forgot everything except constellation of Orion the hunter. Soon the policeman came and flew the flashlight on their faces and inquired what they were doing. As B. Wordsworth was a poet, he gave a tricky answer. He said that he has been asking the same question from the last 40 years. It seems that both of them become very close friends. The poet told the boy that he should never ever tell anyone about his house, trees, etc. The boy promised him. The boy liked Poet's room as it was not furnished a lot but looks clean and healthy, but it's lonely. One day the boy asked why he didn't weed unwanted plants and trees. The poet replied by the story that there was a boy and a girl. They fell in love and got married. But coincidentally, the girl with the young poet died. The girl loved nature, and when she died, the boy decides that he would never ever touch anything in the garden. The boy looked at the poet, and as he told his love story, the boy noticed that the poet was feeling sad and older. The boy and the poet always go out walk together until the night. They used to be together. They used to see that as soon as the darkness felt, the lights were being turned on in the ships as well as in the city. It looks as the poet was very excited about the boy as he inquired the boy about the ice cream, and if he said yes, then he would become serious and start doing arrangements even if he don't have a lot of money, and start bargaining about the cost, and somehow he got ice cream for the boy. All of a sudden the life of the boy become exciting, become curious, become fascinating because of the poet's presence. One day the poet said that he want to share a great secret. The boy become excited. इस लड़के को जो है वो बिल्कुल भी यानी कि समझ में नहीं आ रहा था सितारों ऊपर आसमान का देखना, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने तमाम गम, तमाम गुस्सा सब भूल गया था, और इसकी माँ ने जो इसे मारा था इतनी ज़ोर से, वो इसके जहन से निकल गया था। और लड़के ने कहा, बच्चे ने कहा उस आदमी से कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। फिर उसने जो है वो शायर ने उन्हें आसमान, सितारों के बारे में बताना शुरू कर दिया, और उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन हंटर के अलावा बाकी सब वो भूल गया था। जैसे ही वो देख ही रहे थे आसमानों पर, तो एक पुलिस वाला आया और उन्होंने उसकी अपनी फ्लैश लाइट उन पर डाली और उनसे पूछा, आप लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन चूँकि वो शायर था, उसने बड़ा ट्रिकी जवाब दिया कि मैं खुद ये सोच रहा हूँ पिछले 40 सालों से कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। खैर, इस लड़के की और शायर की आपस में काफ़ी अटैचमेंट हो चुकी थी, और उस शायर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर के बारे में या इन दरख्तों के बारे में या मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। और लड़के ने प्रॉमिस कर लिया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। लड़के ने शायर का जो है वो घर बहुत पसंद किया। उसका घर इतना ज़्यादा फर्निश नहीं था, मगर बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन और हेल्दी था, और हेल्दी एनवायरनमेंट था। और इसके अलावा बस उसे वहाँ पर अकेला, तन्हाई बहुत महसूस होती थी। एक दिन इस लड़के ने जो है वो पूछा कि आप ये अनवांटेड प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं उसको काट क्यों नहीं देते? तो उसने
शायर ने जो है वो एक स्टोरी बताई इसके जवाब में कि एक लड़का था और एक लड़की थी, आपस में बहुत मोहब्बत करते थे और आखिरकार शादी हो गई। फिर अचानक से जब लड़की जो है वो न्यू बेबी बॉर्न देने जा रही थी तो एक छोटा शायर आने वाला था, तो उसकी डेथ हो गई लड़की की, और नेचुरली ऑटोमेटिकली उस बच्चे की भी जो है वो डेथ हो गई इस लड़की के साथ ही। फिर इस लड़की को जो है वो नेचर से बहुत मोहब्बत थी, उसे फूल बाग परिंदे ये सब बहुत पसंद थे, तो इसकी वजह से जब वो मर गई तो लड़के ने डिसाइड किया कि वो उसकी किसी भी चीज़ को जो है वो हाथ नहीं लगाएगा। और लड़के ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो शायर अपनी कहानी सुना रहा था, शायर बहुत उदास होता जा रहा था। शायर और ये लड़का जो है वो अक्सर बाहर चले जाते थे, घूमते थे, सारा सारा दिन बाहर घूमते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब डार्कनेस जो है वो छा जाती थी और हार्बर पे जो है वो शिप्स के अंदर रोशनियाँ हो जाती थी, यहाँ तक कि पूरे शहर के घरों में रोशनियाँ हो जाती थी। उन्हें देखकर बड़ा मज़ा आता था। शायर जो है वो इस लड़के के साथ काफ़ी अटैच हो गया था। कभी वो उससे पूछता आइसक्रीम का और लड़का हाँ कह देता, तो हालांकि उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता था, फिर भी वो इस चीज़ को कोशिश करता था कि किसी भी तरह बार्गेनिंग करके या किसी भी तरीके से उस लड़के को आइसक्रीम दिला के ही देता था। अचानक से इस लड़के की बच्चे की जो है वो ज़िंदगी में एक्साइटमेंट आ गया था, बड़ी अच्छी हो गई थी, बड़ा प्यार होने लगा था उसको, उसका पोएट का प्रेजेंस इसको मज़ा आता था, पोएट की मौजूदगी में उसको इंजॉय करता था। एक दिन जो है वो शायर ने कहा कि मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। And girls, the poet said that the secret is, I'm going to write a poem. The boy got sad and thought, this is not a secret. This is a very obvious thing. You are a poet. You will write poems. What's the secret in that? The poet said, this is a secret because this poem is the greatest poem of the world. I have been writing this poem from the past 5 years and I have planned to write it till the next 22 years. The boy thought that if this is the case, the poet would have been writing a lot, and the boy asked the poet that you would have been writing a lot. The poet said, no, every month I write only one line, but that line is nice, deep and great. The boy asked about the line he wrote previous month. He replied, the past is deep. The boy liked this line. The boy said, whatever experience I have in that particular month, I put it in one single line, and likewise I'm going to finalize my poem, and I'm going to finish my poem, and I'm sure that this poem will be sung to all the humanity. The boy was filled with wonder. One day when they were walking along the sea wall at dockside, the boy asked the poet about a pin that would float or sink. According to the poet replied tricky answer and told him to throw the pin and let's observe. The pin sank as it was metal. The boy asked about the poem for the upcoming month. He didn't respond and he just said, it naturally comes to me. I don't plan to write any great line. The boy was wondered that the poet was not doing anything. The boy asked, how do you earn money because you are not doing anything right now? The poet said, I just sing songs in the calypso season, and I get money during that season. The boy thought about it and asked him that the money he earned during that season was enough for him for the whole year. The poet said yes, he's satisfied. The boy asked him about his great poem, that if you finish that poem, then he will become the richest man. He didn't reply. One day, the boy went to the poet's room, and the boy was shocked to see the poet lying on his small bed. पोएट ने उससे कहा कि मैं एक बहुत ही अच्छी पोम लिखने जा रहा हूँ, और तो ये सुन के लड़का जो है वो उदास हो गया। उसने कहा इसमें कौन सा सीक्रेट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शायर हैं तो आप जो है वो पोम ही लिखेंगे। तो उसने कहा इसमें सीक्रेट ये है कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट पोम होगी और जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ, और पिछले 5 सालों से लिख रहा हूँ, और आगे 22 ईयर्स तक मैं इसको लिखूँगा और कंप्लीट करूँगा। तो
लड़के ने कहा, अच्छा यही वजह है कि शायर लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं जो है वो हर मंथ में जो है एक लाइन ही लिखता हूँ, लेकिन वो लाइन इतनी अच्छी, इतनी गहरी और इतनी बेस्ट होती है कि उस पोम के लिए, और मैं जो है वो उसे अपने पोम का हिस्सा बनाता हूँ। फिर इस लड़के ने पूछा कि आपके पिछले महीने की जो है वो लाइन क्या थी। उसने कहा, द पास्ट इज़ डीप, के माजी गहरा होता है। लड़के को ये लाइन बहुत पसंद आई और उसने शायर ने कहा कि मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं एक महीने के, वो एक सिंगल लाइन में उसको डाल देता हूँ और उसको पोम को मैं इस तरह से फिनिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो तमाम इंसानियत इसे गुनगुनाएगी। और इस लड़के को ये सुन के काफ़ी हैरत हुई। एक दिन वो समंदर के किनारे जो है वो डॉक साइड के समंदर के किनारे और दीवार के साथ साथ वो चल रहे थे। इस लड़के ने हाथ में एक पेन थी। उसने कहा कि अगर मैं इसे समंदर में फेंक दूँ तो ये डूब जाएगी या तैरेगी। शायर ने ये नहीं कहा कि वो डूब जाएगी, क्योंकि वो तो मेटल है, वो तो डूबना ही था उसे। लेकिन शायर ने कहा कि एक्सपीरियंस कर लो कि ये डूबती है या तैरती है। लड़के ने जब उसे समंदर में डाला तो वो डूब गई। लड़के ने उससे उसके आने वाली पोम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ, जो अचानक से वो मेरे दिमाग में आता है, मैं प्लान करके नहीं लिखता हूँ। और वो एक अच्छी लाइन जो है जब मेरे दिमाग में आती है खुद ब खुद, इसके बाद मैं लिखता हूँ। लड़के ने पूछा कि आप कुछ भी नहीं करते तो आप कमाते कैसे हैं। फिर उस आदमी ने पोएट ने कहा कि मैं जो है वो कैलिप्सो सीज़न में जो जाता हूँ और घर घर जाके जब सॉन्ग्स गाता हूँ, वो उस सीज़न में मेरे पास जितने पैसे जमा होते हैं वो मैं इस्तेमाल करता हूँ पूरे साल। लड़के ने कहा कि पूरे साल के लिए ये काफ़ी होते हैं। उसने कहा, शायर ने कहा, हाँ मेरे लिए बहुत है ये। फिर लड़के ने पूछा कि वो जो पोम आप लिख रहे हो वो अगर जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। उसने शायर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन जब वो लड़का उस शायर के घर में गया तो वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। When he saw the poet, he looked very weak. He lost all his energy and he was getting thinner. The boy looking at the sight of the shrinking poet and cried aloud. Now the poet started talking, but he started talking in such a way as nobody was there near him. He felt the presence of the boy, but he did not really act in the same manner. He said that the poet is not going well. He was looking at the coconut tree outside the window. Then he told something very deep to the boy. He said, when I was 20 years old, I thought I could conquer the world, and I had so much energy, I had so much power, and in almost in front of the boy could easily see that this person is growing so tired, this person is growing so weak. And again after that the poet said that this power was long time back, and now look at me, I have no power at all. I'm so weak and so powerless. Hearing this, the boy felt as if he was slapped tightly by his mother. The boy could see clearly on his face, that he was going to die soon. The poet tried to identify the boy's feelings. The poet looked right into the boy's eyes and saw tears coming up in the boy's eyes. So he sat up and called the boy near him and said, I always knew that you could cry. I always knew that you had the poet's eyes, because the poet could cry for anything. And now the boy himself, he was crying. So looking at that B. Wordsworth told the boy that he always knew that the boy was also a poet. Now the man is lying on a little bed, so slim, so powerless, not able to do anything. Still, in spite of all this, he is not looking sad. All of these feelings were identified by the boy who was sitting there still, and therefore he felt like cry. He felt, why this man not sad in spite of all the trouble of this feeling? He can so strong that the boy himself started crying loudly. The poet looked at the boy and called him near and asked the boy that if he wanted to hear the funny story. He told the boy that he told him about the boy and girl who got married and who were gonna have a child. All of those things were made up.
those stories were not true. And secondly, he also told the boy that the talk about the greatest poetry in the world was also fake. And he asked the boy if this was the funniest thing he's ever heard. And all of a sudden the poet stopped talking. His voice broke and he did not speak any further, which means he had died. A little boy ran back to his house, crying loudly like a poet for everything that he saw, for the helplessness that he saw. After a year after, the boy came back to the street and he could not see anything. He could not see any signs about the poet or his house, and it had really vanished. His house was pulled down by the authorities, and in place of the poet's house and the big trees which have great mangoes were also cut down. The house was replaced by a two-story building, and there was concrete everywhere instead of the nice green trees and plants. And looking at all of this, the little boy thought that it seems as if my friend and my poet B. Wordsworth never really stayed here. It vanished in an instant. Everything disappeared in an instant. So, this is the story. This is the incident Naipaul, as a kid, had been with Wordsworth. जब उसने देखा कि वो बहुत ही वीक लग रहे हैं और उनकी एनर्जी वो खो चुके हैं और बहुत कमज़ोर से लग रहे थे, और उनके सूखते हुए चेहरे पे देखकर शायर के लड़के को बहुत रोना आ रहा था। और फिर शायर ने जब ये देखा कि लड़का रो रहा है तो उन्होंने उससे बैठे और बातें करना शुरू की। और लेकिन वो इस तरह से बातें कर रहे थे कि लड़के की मौजूदगी को वो महसूस तो कर रहे थे मगर लड़के को देख नहीं रहे थे। वो बाहर कोकोनट ट्रीज़ वगैरह को देखकर और बातें कर रहे थे जो बाहर खिड़की से इनको नज़र आ रहा था। और उन लड़के से उन्होंने बहुत गहरी गहरी बातें की। उसे कहा कि जब मैं 20 साल का था तो मैं समझता था कि मैं दुनिया फ़तह कर सकता हूँ, मैं बहुत एनर्जी वाला था, मैं बहुत पावरफुल था। और लड़का जो है वो इस आदमी को देखकर जो है इनके शायर को देखकर जो है वो सोच रहा था कि अब वो कितने कमज़ोर लग रहे हैं। शायर ने कहा कि मैं ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत एनर्जी था, लेकिन अब मेरी पावर्स जो है वो ख़त्म हो गई, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। ये सुनते ही शायर लड़के को जो है वो अपनी माँ का थप्पड़ याद आ गया कि जैसे इसकी माँ ने बहुत ज़्यादा सख्ती से इसको चांटा लगाया हो। वो लड़का जो है वो इस जो शायर था उसे लड़के को महसूस हो गया था कि शायर जो है वो अब वो ज़्यादा देर तक नहीं है। और ये सोचकर वो लड़का रोने लगा। शायर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा एक शायर को देखा है, और शायर जो है वो हर बात पे रोता है। और लड़का जो है वो ये सब सुन के और मज़ीद रोने लगा। शायर ने उस लड़के से कहा कि आओ मैं तुम्हें एक जो है वो बहुत ही फ़नी मज़ाया स्टोरी कहानी सुनाता हूँ। उसने उस लड़के को कहा कि वो जो मैंने आपको कहानी बताई थी लड़का और लड़की की लव स्टोरी, वो सब फेक थी, झूठी थी। और यहाँ तक कि वो जो ग्रेटेस्ट पोएम वाली बात थी, पोइट्री वाली बात थी, वो भी सब मेरी बनगढ़ंत थी, मैंने ऐसे ही आपको कही थी। शायर ने मज़ीद कहा कि मुझे लगता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा फ़नी स्टोरी होगी जो तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी होगी। और अचानक से शायर की आवाज़ बंद हो गई। उसने बात करना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ टूटना शुरू हो गई और आखिरकार उसने बात करना बंद कर दिया। इस मीन्स कि अब शायर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। लड़का जो है वो भागता भागता रोता हुआ अपने घर की तरफ गया और वापस इस तरफ नहीं आया। काफ़ी अरसों के बाद काफ़ी सालों के बाद जो है वो शायर बच्चा जो है वो इस स्ट्रीट की तरफ आया। उसने देखा कि यहाँ पर जो है वो इसके अपने दोस्त, इसके शायर के घर का कोई निशान नहीं है। कोई हर चीज़ जो है वो वैनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अथॉरिटी ने जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने जो है वो यहाँ के दरख्त, यहाँ की हरियाली, यहाँ के मैंगो ट्री सब काट दिए थे। और उस घर की जगह पे वन रूम हट की जगह पर जो है वो एक टू स्टोरी बिल्डिंग बन गई थी। यहाँ पे हर तरफ रेती सीमेंट यही नज़र आ रहा था, जो कि हरियाली वगैरह सब यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी।
जब लड़के ने ये सब देखा तो उसने सोचा कि मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी कोई बी वर्ड्स नाम का शायर या मेरा दोस्त जो है वो यहाँ पे रहता होगा। यहाँ पर अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, हर चीज़ यहाँ से वैनिश्ड हो गई, ख़त्म हो गई। और ये स्टोरी ये इंसिडेंट जो है नायपॉल का, जब वो बच्चा था और बी वर्ड्सवर्थ के साथ जो मुलाकात थी, इसे इन्होंने अपने अल्फाज में जो है वो तब्दील चेंज करके उन्होंने हम तक ये पहुंचाई है, अपनी मेमोरीज़ को हमसे शेयर किया है। थैंक यू गर्ल्स, एंजॉय योर वर्क। अल्लाह हाफिज़।